Hello friends, how are you? Today we are deriving the formula of circumferential or hoop stress. Welcome to this channel. So friends, basically there are three types of vessels, and the first one is spherical vessel, basically used to store liquid as well as gases, and second one is hemispherical vessel, which is mainly used to store gases and the pressure distribution is uniform if it is a gas, and the third one is used to store liquid where pressure distribution is non-uniform if it is a liquid. And we are discussing about thin cylinders where diameter upon thickness is equal to 15 upon 20. This is taken, and if internal pressure due to gas pressure does not change with respect to height, that is why PV is equal to MRT. Pressure of gas depends upon mass, temperature, volume, nothing to depend on height. But in liquid, pressure does change with respect to height. That's why P is equal to rho GH is given. Thin cylinder under internal pressure. When a thin walled cylinder is subjected to internal pressure, three mutually perpendicular principal stresses will be set up in the cylinder material. First one is the circumferential or hoop stress, second one is radial stress, and the third one is longitudinal stress. So friends, अगर हम लोग कोई प्रेशर वेसल लें तो उसमें दो तरह के देखिए आप प्लेन्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन बनता है और ट्रांसवर्स प्लेन बन रहा है। तो इस तरह से स्ट्रेसेस होते हैं, आप देख सकते हैं। If we are taking a pressure vessel, then there are two types of planes of stresses, that is longitudinal plane and transverse plane. That is, transverse means vertical and longitudinal means horizontal. Now let's start the derivation. So सबसे पहले हम लोग एक प्रेशर वेसल बनाएंगे, एक सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल। आप देख सकते हैं इस तरह से होगा एक सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल, और इसकी कुछ थिकनेस होगी और इसके बीच थिकनेस के बाद कुछ डायमीटर होगा और इसकी कुछ लेंथ भी होगी। ये आप जो बीच का एरिया देख रहे हैं वो है डायमीटर। ये हमारे सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल का डायमीटर है। डी इज़ कंसिडर्ड एज इंटरनल डायमीटर, जिसको हम एमएम में लेंगे, जो इसका यूनिट है। टी इज थिकनेस ऑफ सिलेंडर, उसका भी जो यूनिट है वो मिलीमीटर में होगा। ये देखिए, डी इंटरनल डायमीटर, टी इज थिकनेस ऑफ सिलेंडर, और जो पी है वो है इंटरनल प्रेशर, उसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मिलीमीटर स्क्वायर। और ये है पी इंटरनल प्रेशर है, हम इसको पी आई से भी डिनोट कर सकते हैं, पी और एक छोटा सा स्मॉल आई। सिग्मा सी जो है दैट इज सर्कमफेरेंशियल और हुप स्ट्रेस, इसकी यूनिट भी न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होगी, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और जो कैपिटल एल है दैट इज लेंथ ऑफ द सिलेंडर, अगेन हुज यूनिट इज इन मिलीमीटर। कैपिटल एल जो है वो सिलेंडर की लंबाई है और उसकी जो लंबाई जो है वो है सिलेंडर की और वो मिलीमीटर में। So when we talk about circumferential stress, in that case, due to the internal pressure, this cylinder is going to burst into two equal halves. It would be breaking along this diameter into two equal halves, and after breaks, it looks like this. Due to internal pressure P, this cylinder is going to break into two halves like this figure, and the type of stress induced is known as circumferential stress. देखिए, जैसे ही इंटरनल प्रेशर होगा तो उसके कारण दो टुकड़ों में ये दो हाफ में बटेगा, और इंटरनल प्रेशर के कारण जो सिलेंडर होगा वो बर्स्ट होगा। वो बर्स्ट होने के कारण वो दो टुकड़ों में अलग होगा। देख सकते हैं आप, इंटरनल प्रेशर जो पी है उसके कारण वो दो टुकड़ों में बर्स्ट हुआ, कुछ इस तरह से। ये जो एरो है हरी रंग की, इंटरनल प्रेशर के कारण जो हमारा प्रेशर वेसल था दो टुकड़ों में बर्स्ट होके अलग अलग टुकड़ों में हो गया। तो बेसिकली जो है, now to get the circumferential stress, first we will find the force which is causing this bursting of cylinder, which is called bursting force. So bursting force is given by FB.
और एफ बी जो है वो होता है, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। एरिया कौन सा, एरिया जो है वो है डायामीटर इनटू लेंथ, और इसका जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन में, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होता है। तो प्रेशर तो P है और इनटू एरिया, एरिया जो है वो क्योंकि रेक्टेंगुलर होगा तो बिकॉज एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज लेंथ इनटू ब्रेथ। ये जो ब्लू कलर से प्रोजेक्टेड एरिया ये वाला लेना है। सो हेयर लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होगा, L इनटू डायामीटर। लेंथ जो है वो L है और जो D है वो है डायामीटर। सो जो बर्स्टिंग फोर्स होगा वो होगा एफ बी इज इक्वल टू P इंटू डी इंटू एल, और जिसकी यूनिट होगी वो होगी न्यूटन में। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया है। अब फ्रेंड्स, अगर हमारे प्रेशर वेसल को कोई बर्स्टिंग फोर्स के कारण वो टूट रहा है तो उसको जोड़ने वाला भी एक फोर्स होता है, हमेशा याद रखिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम लोग फॉलो करते हैं। अगर कोई जोड़ने वाला है तो उसको तोड़ने वाला फोर्स भी होता है और जोड़ने वाला फोर्स भी होता है। तो बर्स्टिंग फोर्स तो ठीक है। अब जो है रजिस्टर्ड, नाउ दिस बर्स्टिंग फोर्स इज रजिस्टर्ड बाय द एरिया विच इज़ शेडेड हेयर, दिस इज़ द एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब जो इसकी थिकनेस है यहाँ पर जो है, इसको बचाने के लिए एक रजिस्टिंग फोर्स पैदा होगा, और वी कैन से हाउ टू गेट दिस एरिया, थिकनेस ऑफ दिस सिलेंडर शेल इज T। तो यहाँ पर दो प्रकार के, देखिए ये जो ग्रीन कलर का जो एरिया है, ये दोनों तरह से हम लोग को जो थिकनेस है, जो यही रजिस्टिंग फोर्स यहीं पर पैदा होगा। तो जो रजिस्टिंग फोर्स वुड बी FR, FR से हम लोग इसको डिनोट कर रहे हैं, F और छोटा r। इट वुड बी अगेन स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस यानी कि सिग्मा C, यानी कि ये क्योंकि सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस है इसलिए, और एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ब्रेथ में हम लोग ने 2T क्यों लिए हैं, 2T इसलिए लिए क्योंकि दोनों तरफ से इसका थिकनेस लिए हैं, और इनटू लेंथ। ये जो आपको एरिया दिख रहा है प्रोजेक्टेड एरिया, सिंगल एरिया is T into L, but in this condition we have two areas which is resisting the bursting force, that's why we are taking two areas, so 2T is taken into account. So FR यानी कि रेजिस्टिंग फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा C इंटू 2T इंटू L, और इसका जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। नाउ अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्योंकि मैकेनिकल में इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, तो इसीलिए इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है उसको मेंटेन करना है। सो बोथ दीज फोर्सेस शुड बी इक्वल, यानी कि बचाने वाला फोर्स और इज इक्वल टू तोड़ने वाला फोर्स, यानी कि रेजिस्टिंग फोर्स इज इक्वल टू बर्स्टिंग फोर्स। तो ये हमेशा याद रखिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमको इक्वल करना है, तभी ये बचेगा टूटने से, ये स्थिर बना रहेगा। सो बर्स्टिंग फोर्स इज इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स। बर्स्टिंग फोर्स हमारा आया था इंटरनल प्रेशर P इंटू डी इंटू एल, और रेजिस्टिंग फोर्स था सिग्मा C इंटू 2T इंटू एल। एल से एल कैंसिल हो गया, तो PD अपॉन 2T इज इक्वल टू सिग्मा C। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेशन ऑफ सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस और हुप स्ट्रेस। सो सिग्मा C इज इक्वल टू PD अपॉन 2T। P कौन सा, इंटरनल प्रेशर, इसको P के बाद एक छोटा सा I भी लिख सकते हैं। तो P इंटरनल प्रेशर है, D डायामीटर है, और T थिकनेस, और दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंशियल और हुप स्ट्रेस। और सिग्मा C इज इक्वल टू PD अपॉन 2T, और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, N अपॉन mm स्क्वायर। सो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस होता है सिग्मा C इज इक्वल टू PID अपॉन 2T, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है PID अपॉन 4T। सो फ्रेंड्स, द सर्कमफेरेंशियल और हुप स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, मीन्स इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, इट डिपेंड्स ऑन द इंटरनल प्रेशर, द डायामीटर एंड द थिकनेस।
That means if the thickness is less, then the circumferential stress would be greater, and if the internal pressure is greater, then the circumferential stress would be high. Similarly, if the diameter of the cylinder is huge, or if it is greater, then the circumferential stress would be greater. तो यही है, अगर जो डायमीटर होगा सिलेंडर का वो ज़्यादा बड़ा होगा तो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस भी बड़ा होगा, ज़्यादा होगा. That was the expression for circumferential stress और हुप स्ट्रेस. और जो थिकनेस है अगर वो कम होगी, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस जो होगा वो ज़्यादा होगा. और इंटरनल प्रेशर इस जो होगा वही इसका जिम्मेदार है. तो ये बहुत अच्छा डेरिवेशन था, आप देख सकते हैं. बेसिकली अब देखिए इस तरह से होगा, इंटरनल प्रेशर के कारण ये दो टुकड़ों में बट जाएगा जो हमारा प्रेशर वेसल है सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस में. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो और डेरिवेशन बहुत अच्छा लगा होगा. प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके. और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए. और आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. इसी तरह मुस्कुराते रहें और इस चैनल की वीडियोज़ देखते रहें. इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए. थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखें.